Mic check, 1, 2, 3. Mic check. माइक चेक. ठीक है. चलो. Good evening, everyone. So today we are all meeting here for the purpose of understanding Indian society as a part of our syllabus. Now, if you see, you people must have done now a series of lectures which are talking about what is exactly this examination is all around. This examination, which we are today focusing upon, is UPSC and also MPSC state services. In this examination, we have different subjects clubbed together into general studies papers. In this paper, they have also given us an Indian society part. Now, why they have given this part? This is very interesting to understand. अगर आप देखोगे तो some of the people are also thinking, see, sir, Indian society का part तो मतलब we are part of this society, we are born into this society. अगर हम लोग इस समाज में पैदा हुए, इस समाज में रहे, इस समाज में बढ़े, तो we all know the society, isn't it? So why then it is necessary for the commission to introduce this as a part of syllabus? Now it's a very good question, and it is also gives us a logic to study the subject in a particular context so that we will be able to, let's say, write good answers for this part. Now अगर आप देखोगे तो those who are born into a particular society, let's say हम अगर इंडियन सोसाइटी में पैदा हुए हैं, तो साहजिक है कि we have seen the society, we have experienced the society, but it is the only aspect of the society that we know is the real aspect, या इससे आगे भी बढ़ के कुछ हो सकता है. This is what very important to understand, and that's why when we see the syllabus that they have given of the Indian society part, this is going to make the situation very clear. But before going into the syllabus, let's try to identify where this Indian society part of the syllabus is located, especially in the examination pattern. Now, some of your students might have attended certain sessions which talk about the 3-stage examination. But for those who have not attended it, I will give a very brief idea about it. So if you look at UPSC or let's say MPSC ka examination, it's a 3-stage examination. First stage is prelim, followed by main examination, and then personality test. It is also called as interview. Now, if you see, this main examination consists of multiple papers. Especially, we are focusing on GS papers, GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, and GS paper 4. So we are going very rapidly. बहुत सारे लोगों ने आपने ये देखा है, इसलिए बहुत quickly मैं इसमें जा रहा हूँ. So in GS paper 1, they have given 3 parts in the syllabus, and that is geography, society, and history. Now, if you see, each GS paper is for 250 marks, right? So 250 marks here, 250 marks for the second paper, third paper, and the fourth paper, which is ethics ka paper. Combining it together, we will call it a 1000 marks ka GS paper that they have asked you to study. उसके साथ साथ एक एसी का पेपर भी आएगा, that will be 250 marks, that will be different. But we are today here to understand what is the location of Indian society part of the syllabus in our whole examination pattern, which we can identify it is here.
This is what we are concerned about understanding today. Obviously, we are not going into the details of this subject as per se topics, different topics that are there. And that will be the part in the further discussions after few sessions. But the point is that when we identify ki where does it lies, we find out that main examination mein aata hai. And that gives us an idea ki in the other part, like prelims, it is not specifically mentioned. But in the personality test, because they have not mentioned any part of the syllabus, some of the questions definitely they are going to ask you about the social issues that are happening around you, and that's why again this society part will be useful for you in the in your personality test, which is also called as interview. But when now we are talking about in the main part of the syllabus, this examination has included Indian society part. What exactly of Indian society they want us to understand? जैसे कि मैंने बहुत शुरू में ये आर्ग्यूमेंट बोला था कि हम लोग तो इसी समाज में पैदा हुए, इसी समाज में बड़े, 20-30 साल जो भी आपका एज है वो आप रहे, तो ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस से हम लोग नहीं सीखते. दैट माइट बी द एरिया ऑफ इंटरेस्ट दे माइट बी हैविंग. तो देखते हैं ना, वी विल गो इनटू द सिलेबस ऑफ द इंडियन सोसाइटी पार्ट and we'll try to understand what is the demand of the examination. Now let's go through the 10 topics that they have mentioned. Now अगर आप देखोगे तो ऐसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके 10 टॉपिक्स नहीं दिए सिलेबस में, उन्होंने सिंपल दिया है. इफ यू लुक एट द नोटिफिकेशन of the UPSC or MPSC, you will find out they have given 2 syllabus there. First is a prelim ka syllabus and second is a mains exam syllabus. Prelim ke syllabus mein obviously some other parts are covered, and in mains syllabus as we have mentioned GS1 to लेके GS4 तक ऐसे का और बाकी दिया है. उसमें उन्होंने जो GS पेपर 1 का सिलेबस दिया है उसमें उन्होंने रेगुलर पैराग्राफ फॉर्मेट में सारा दिया है फॉर अवर एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एंड जब हम लोग लेक्चर्स करेंगे उसमें डिटेल में जब जाएंगे तो समझने के लिए उसको मैंने लेट्स से 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया है विच वी विल बी फोकसिंग ऑन. नाउ जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वी विल बी फोकसिंग 9 आउट ऑफ दिस 10 टॉपिक्स विद इन इंडियन सोसाइटी पार्ट ऑफ द सिलेबस. एक जो पार्ट है यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के पार्ट में जीएस पेपर 2 में. जीएस पेपर 1 का जो फोकस है हमारा, इट राइज विद द रिमेनिंग 9 पार्ट्स ऑफ द सिलेबस. तो उसमें देखते हैं क्या क्या हम लोगों को वहां पे पढ़ना है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडियन सोसाइटी के फीचर्स. रेगुलर फीचर्स नहीं बोला है, salient फीचर्स बोला है. Now every word has its own meaning, which is very important to understand. Now why? Because the Indian society is too big. It's diverse. It has different types of practices that are happening, belief systems that are there, institutions है, उसका एक अपना खुद का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोसाइटी में है. So if you want to understand Indian society, there could be multiple features of it. So which we have to focus on, which are the most important features we have to focus on. तो उसके लिए हम लोग 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे. Obviously, now this is very important. As per the Indian society part of the syllabus concern, yes, it is obviously. But अगर आप कोई भी और भी part of the syllabus करते हो, तो इसमें मैं जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ ये हमेशा सही रहेगा. And that logic is कि जब भी आप कोई भी सिलेबस का पार्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल में दिया होगा क्या पढ़ना है. दैट इज द फर्स्ट रिसोर्स गिवन बाय द यूपीएससी और एमपीएससी फॉर अस टू स्टडी. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जनरली देखो ये परसेप्शन होता है कि व्हाट दे आस्क इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. नहीं, ये आप हमेशा सुनते हो. तो ये सच है क्या? इससे अच्छा हम लोग देखेंगे कि एनीथिंग अंडर द सन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पूछेंगे आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, ऐसा नॉर्मली हम लोगों ने देखा नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैज बीन आस्किंग फॉर नाउ लॉट ऑफ इयर्स, दे आर स्टिकिंग टू इट्स ओन सिलेबस. तो इंडियन सोसाइटी पार्ट में भी ये सिलेबस को कनेक्ट करके चलेंगे. अब ये सच में है या नहीं है इसका एक केस स्टडी भी करेंगे. वी आर गोइंग टू टेक वन ऑफ द यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आफ्टर दिस स्लाइड ओनली, एंड आई एम गोइंग टू शो यू, वी विल टुगेदर क्रॉस चेक कि जो भी सिलेबस में दिया है क्या उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे, ये हम लोग एक
यहाँ पे ही केस स्टडी कर लेंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपको यूपीएससी देता है, दैट डॉक्यूमेंट इज सिलेबस। तो उसको आपको बहुत थरोली पढ़ना है, उसको याद रखना है, उसको अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है हमारे पढ़ाई में। बट द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, वी विल बी रीडिंग द सिलेबस वेरी वेरी केयरफुली। और सेकंड जो रिसोर्स है दैट यूपीएससी जनरली गिव्स अस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो जो भी एग्जामिनेशन होगा, द क्वेश्चन पेपर ऑफ दैट एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन द on the let's say commission's website. It will be available in the public domain. So जो भी बच्चे आगे जाके पढ़ाई कर रहे हैं वो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को स्टडी कर सकते हैं, सो दैट टू गेट एन आइडिया कि क्या टाइप का एग्जामिनेशन है, किस टाइप से हम लोगों को पढ़ाई करना है। सो इस दो रिसोर्सेज के ऊपर हमेशा हम लोगों को रिलाय रहना है। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट इज द सिलेबस एंड सेकंड इज द, यस वेरी करेक्ट, सेकंड इज द क्वेश्चन पेपर। नाउ जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, क्योंकि उन्होंने तो ओपन एंडेड रख दिया टॉपिक। क्या बोला उन्होंने कि भाई फीचर्स पढ़ो इंडियन सोसाइटी के, कौन से इंपॉर्टेंट वाले पढ़ो। बट कौन से इंपॉर्टेंट ये कौन बताएगा? ये नहीं बताया उन्होंने सिलेबस में। उन्होंने बोला कि जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखे, नाउ फॉर यूपीएससी वी कैन गो फ्रॉम 2013 टू 2025, राइट? एंड फॉर एमपीएससी वी कैन गो फॉर 2025 से लेके जो भी आगे का एग्जाम होगा हम लोग उसके देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे मिला के हमारे पास एक 13-14 क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें से हम लोग एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस के बाद हम लोगों को समझेगा कि अच्छा चलो, इसमें हम लोगों को दिखता है कि ये भाई 1, 4, 5, 6 जो भी है ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? तो if I am analyzing let's say last 10-12 years के क्वेश्चन पेपर, there is a bunch of question, और उसमें अगर मैं स्पेसिफिकली देखूंगा इंडियन सोसाइटी की फीचर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, आई टेक देम aside and then I keep on studying them. I try to understand कि what are the features that they are focusing on in Indian society. और उसमें अगर आप देखोगे तो एक 7-8 फीचर्स हैं, हमेशा उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ ये जो टॉपिक है, फर्स्ट वाला टॉपिक, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी बिगिन विद आवर सिलेबस आल्सो इन डिटेल, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। उसके दो पर्पस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द फर्स्ट पर्पस ऑब्वियसली बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छा पढ़ना है। आई विल and we will write the good answers of this topic, so we will get a good marks. But इसके अलावा भी इसका एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और वो बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि when I study the features of Indian society, I get to understand that some of the topics that are mentioned here, they create the features of Indian society creates the foundation to understand the next topic or to prepare the next topic. कैसे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर हम लोग बोलेंगे कि इंडियन सोसाइटी में क्या ऐसी विशेषताएं है, क्या वैशिष्ट्य है, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो भाई, इंडियन सोसाइटी में इसमें कास्ट सिस्टम बहुत ही यूनिक टाइप का है। दुनिया में हम ज्यादा जगह पे नहीं देखने को मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखता है, तो बहुत ही पिक्यूलियर है। ठीक है, और क्या क्या दिखता है इंडियन सोसाइटी में? कि इंडियन सोसाइटी की फैमिली सिस्टम, इंडियन सोसाइटी का मैरिज सिस्टम, ये अपनी एक ट्रेडिशन के बलबूते पर बड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज भी इंडियन सोसाइटी में हमें पैट्रियार्कल माइंडसेट दिखता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्की पार्ट है इंडियन सोशो कल्चरल एस्पेक्ट का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाँ, इंडियन सोसाइटी का पैट्रियार्की एक फीचर है, तो इसी से मैं लेके आता हूँ मेरे सेकंड टॉपिक के बारे में उसको। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वुमन एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। व्हाई? Because this society has made itself more prone to or more, let's say, focused on male's need. पुरुषों को क्या चाहिए, ऐसे सोसाइटी बना। एंड इसीलिए जो भी जरूरत है वुमन की, उसको ज्यादा नजर नहीं दिया गया। तो इसीलिए वॉट एवर आर द रोल्स दैट वुमन परफॉर्म, जो भी भूमिका महिलाएं समाज में करेंगी, उस अनुसार हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। So when we study the features of Indian society in the first topic, we understand what is the patriarchal nature of society, Indian society, which creates a foundation, a base to understand the second topic, जिसके ऊपर हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। एंड सेकंड टॉपिक इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों को
मल्टीपल क्वेश्चंस इंडियन सोसाइटी पार्ट में सिलेबस में दिखेगा। और ये टॉपिक सिर्फ इंडियन सोसाइटी तक लिमिटेड नहीं है, वी हैव सीन लॉट ऑफ एसेज आल्सो आस्क्ड ऑन द वुमन रिलेटेड इश्यूज इन द UPSC's question paper. Now, about this connection that it has with the other GS parts, we will talk about it later. But the first thing we are focusing on, let's say, the syllabus. Now, देखो एक बार पढ़ लेते क्या क्या सिलेबस में दिया है। The third topic is talking about population. Fourth topic is about poverty. Fifth topic is about urbanization. Sixth topic is about globalization. कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं। Now see, I'm not reading the full name of the topic. I'm just highlighting what the topic is, let's say, focused upon. But अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि they are not only talking about the poverty here, they are talking about its relationship with the development that is happening in the society. So this is going to create a very important aspect of our discussion today, and that aspect is how Indian society part in the syllabus is interdisciplinary. Again, connecting to population or globalization and so many topics. But we will come to that argument later in our discussion. But what we are going to do today here is, जो बात हम लोगों ने यहाँ पे रखा कि एक सिलेबस दिया है और सिलेबस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, that is the argument we are trying to make. Now it is very important for you all people as a student or aspirants of the civil services to understand कि इसमें कितना reality है. Because when you will start the preparation, when till the time you are not convinced कि जो syllabus में है that is the important part for the preparation, आपका जो preparation है वो targeted नहीं रहेगा. So to make it targeted, to get an assurity कि जो syllabus है उसी के ऊपर question पूछे जाते हैं, we will take a case study and we will go to the UPSC का question paper only. बाकी की क्वेश्चन क्यों देखने, अगर यूपीएससी का खुद का अपना क्वेश्चन पेपर में से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है तो यही प्रूव कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने बात की है वो सही है कि नहीं। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, यूपीएससी का जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ऑब्वियसली 2022 का जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है that comprised of 20 questions because GS paper 1 has history, geography and society as a part. So तीनों के मिलके उन्होंने 20 questions बनाए थे, जिसमें 10 questions were of 10 marks and 10 questions were of 15 marks. So total मिलके 250 mark का question paper बना था। उसमें से जो जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, आई हैव पिक्ड देम एंड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू पीपल टू स्टडी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, we will go into the questions, just read करेंगे and our objective is very simple. We are not trying to find out an answers of this question today. हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिंपल है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है उसका जो थीम है या उसमें जो डिमांड है या उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं, ये एक्टिविटी अभी हम सब लोगों को करना है। तो लेट्स ट्राई टू do this. You people go through the questions. I will give you a couple of minutes to go through the questions and then we will together try to find out कि syllabus के बारे में है कि नहीं। Okay. Now let's go to each question and let's try to connect it to the syllabus point. So you people remember the syllabus. Let's go back to the syllabus once more to see कि इसमें पूछा गया कि नहीं। तो देखो भाई, सीलियन फीचर्स पूछे थे, रोल ऑफ वुमन पूछा था, पॉपुलेशन का है पॉइंट, पॉवर्टी का टॉपिक है, अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे पॉइंट दिए हैं। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन पेपर वंस अगेन एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पे दिखता है कास्ट के बारे में कुछ पूछा है। अभी देखो हम लोगों ने जब बात किया था सीलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी तो उसमें बोल रहे थे कि इंडियन सोसाइटी का तो बहुत बढ़िया फीचर है कास्ट सिस्टम। अभी बढ़िया का मतलब ऐसे नहीं है अच्छा है बुरा है, ये बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, उसके बारे में डिटेल में अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में
कैसे आया, क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या इसके बारे में कंटेम्पररी सिचुएशन हम लोग को दिखती है, दैट इज अ डिस्कशन पार्ट इन द सम अनदर लेक्चर। हम लोगों को ये दिखना है कि ये बहुत बड़ा फीचर है, तो इस फीचर के बारे में आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको पूछा है क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। है पॉवर्टी का टॉपिक। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है आपको, सिचुएशन कोविड-19 से कनेक्ट करके पूछा है, बट थीम के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे कोविड के बाद में जो पॉवर्टी के रिलेशन में। थर्ड क्वेश्चन में आप देखो रीजनलिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है। अगेन एग्जैक्टली सिलेबस में वर्ड है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन के सामने वर्ड। फोर्थ क्वेश्चन में आइए, देखिए आपने हाईलाइट किया था क्या, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें देखो कस्टम्स और ट्रेडिशंस, रीति और परंपराओं के बारे में बात की जा रही है। एंड अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट टॉपिक, salient features of Indian society. Yes, very important. Indian society is a very old society. That's why it is also called as civilization. So what happens in such old societies that some of the practices being followed from generation to generations becomes the customs and traditions of that society. क्वेश्चन के बारे में पूछा है उन्होंने कि क्या ये रैशनल है, दैट विल बी पार्ट ऑफ अनदर डिस्कशन, बट टुडे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया अगेन द क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ यस सीलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आगे भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा ऊपर लेता हूं आपके लिए, जब हम लोग ये क्वेश्चन जनरली पढ़ते हैं तो इन द फर्स्ट गो इट डज नॉट लुक लाइक अ सोसाइटी का क्वेश्चन, इजंट इट। देखो क्या पूछ रहे, डिजिटल इनिशिएटिव्स पूछ रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ना अगर इफ यू सी इट फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस, और जैसे ही पहली बार देखते तो फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट थॉट दैट विल कम टू अवर माइंड कि ये तो पॉलिटी में, गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड कुछ पूछा है, वही तो बता रहे हैं ना कि इलेबोरेट करो आपका आंसर। तो ये तो गवर्नमेंट स्कीम्स लिखनी पड़ेंगी, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एनालिसिस करना पड़ेगा। यस, थीम इज दैट इज द थीम ओनली। बट आप सोचो ना, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है उन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने जीएस पेपर 1 में। और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा जीएस पेपर 1 का सिलेबस का कंटेंट क्या है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। अभी आप मुझे बता, क्या ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बचता क्या है? सोसाइटी। तो ऊपर ऊपर से हम लोग बोलेंगे हाँ सोसाइटी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर तो सोचना भी पड़ेगा ना कि कैसे इसको कनेक्ट करें। ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उसके बारे में मेंशन तो करना पड़ेगा, बट इट शैल बी द इज इट द ओनली थिंग दैट शैल बी फोकस्ड ऑन? नो, फोकस इसमें होना चाहिए आपका सोशल एनालिसिस पे। वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ एजुकेशन का ही क्यों, सिर्फ डिजिटल इनिशिएटिव ही क्यों, यू टेक एनी गवर्नमेंट एक्शन, it could be a policy, it could be a program, it could be let's say a law that is brought into picture. The successful implementation always gets influenced by the level of acceptance it has for the society. If society is open to accept it, yes, the implementation will be very well. The scheme, the program will be successful. If society shows a resistance to it, obviously it is going to take some time for that scheme or program to achieve its desired objective. Let's take up an example of digital initiative. और अगर आप देखोगे कि तो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो ऑब्वियसली कोविड वाज अ वेरी रिसेंट फिनोमेना देन, और उस टाइम पे बिकॉज लेट्स से फिजिकल एजुकेशन, स्कूलिंग इन स्कूल्स और कॉलेजेस और एनी टाइप ऑफ एजुकेशन फिजिकल फॉर्मेट में, क्लासरूम फॉर्मेट में गॉट चैलेंज्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19 रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन लगा था। तो उस टाइम पे एजुकेशन तो नहीं रुकना चाहिए, तो क्या हम लोग डिजिटल इनिशिएटिव्स के द्वारा एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते, एजुकेशन
लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में बहुत काम किया गया। और भी एक चीज है, बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री, there are a lot of people living in the hinterlands of India into difficult terrains. Some of the people don't have resources to come to a region, let's say a tehsil region or a district place to come and take some, let's say, education, especially higher education. तो क्या इनके लिए डिजिटल इनिशिएटिव हेल्प करेंगे? तो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स, बट एट द सेम टाइम आप ये देखो कि सोसाइटी का इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा कि नहीं। तो आप तीन एस्पेक्ट के ऊपर इसको सोच के देखो, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। सिंपल एग्जांपल लेके चलते, थिंक अबाउट अ फैमिली ऑफ 4 people, husband, wife, son and daughter, 4 people. And think in this way that this is a low income group family, थोड़ा सा इकोनॉमिकली गरीब कैटेगरी में बैठने वाले लोग हैं। तो अगर बात करेंगे तो थिंक अबाउट दैट द फैमिली हैज ओनली वन स्मार्ट डिवाइस, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है लेकिन एक है फैमिली में। और उनके फादर जो है इज डूइंग सम ऑड एक्टिविटीज, लाइक इज स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, तो कुछ बनाते हैं और रास्ते पे जाके बेचते हैं। तो ऑब्वियसली डिजिटल पेमेंट लेते हैं, तो उनको जब भी वो बाहर जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, तो उनको अपना स्मार्टफोन साथ में लगेगा, बिकॉज डिजिटल पेमेंट लेना है। बट एट द सेम टाइम द सन एंड द डॉटर इज ऑल्सो हैव टेकन द बेनिफिट्स और अप्लाइड फॉर द डिजिटल इनिशिएटिव्स, लेकिन फोन तो एक है। अब क्या करेंगे? तो जब तक फादर इज आउटसाइड द हाउस, phone is not available. Now father returns to, especially let's say in the evening or at the night, और तब बेटे को भी और बेटी को भी, दोनों को भी पढ़ना है यहाँ पे, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? आप जरा सोच के बताओ। और आप देखो, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द पैट्रियार्कल नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, आपको ये समझ में आएगा यहाँ पे कि द मोर प्रेफरेंस विल बी टू द बॉय इन द हाउस, उसके एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स है, अवेलेबल है, बट क्या वो एक्सेसिबल है, क्या वो अफोर्डेबल है, ये सोचना पड़ेगा। तो जेंडर इश्यू, अवेलेबिलिटी तो इंश्योर, मतलब अवेलेबिलिटी तो इंश्योर्ड है, गवर्नमेंट ने अवेलेबल करके दिया, बट उसको एक्सेसिबिलिटी जेंडर हैम्पर कर रहा है। अफोर्डेबिलिटी का भी इश्यू है, क्योंकि हम लोगों ने जब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई किया था, वी टॉक्ड अबाउट बिलो पॉवर्टी लाइन वाला फैमिली, तो उनके लिए तो वो 3 महीने का, 1 महीने का 1.5 GB का, 2 GB का रिचार्ज करना becomes a little difficult part as compared to people living above poverty line, and that's why accessibility भी मिलेगा, बट फिर वो अफोर्डेबल है कि नहीं। और हम लोग जब बात कर रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स स्पेशली फॉर एजुकेशन पर्पस, तो बेसिकली एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर इज अ राइट, लेट्स से अ डिजिटल डिवाइस टू स्टडी। चाहे तो आप टैबलेट या आईपैड की बात कर सकते हो, बट मोबाइल फोन जिसका स्क्रीन बहुत ही छोटा है, उस पर डिजिटली एजुकेशन लेना फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट्स लॉट ऑफ चैलेंजेस। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो डिजिटल डिवाइस को आपको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज भी तो करना पड़ेगा, बैटरी उसकी फुल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आया ना। आप देखो आज भी बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल 24/7। और अफोर्डेबिलिटी की बात तो अलग रही, आपको पैसे भी भरने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ थिंक अबाउट इट कि डिजिटल इनिशिएटिव है, आपने डिजिटली कन्वर्ट कर दिया कंटेंट एजुकेशन का, आपने वीडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिया, फ्री भी है शायद, फिर भी क्या मेरे पास स्मार्ट डिवाइस है? क्या मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है उसको चार्ज करने के लिए? क्या मैं इंटरनेट अफोर्ड कर सकता हूँ? और ये सबके बाद में भी इन द फैमिली, इफ देर इज ओनली, देर इज अ रिस्ट्रिक्टेड और लेट्स से रिसोर्सेस आर कंस्ट्रेंट, लाइक देर इज ओनली वन स्मार्ट डिवाइस, हु विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस? तो वहां पे जेंडर का इश्यू भी आ सकता है। इसको बोलते हैं सोशल एनालिसिस। So no doubt in your answer you have to write the different government initiative that has happened at that particular time, और उसके अनुसार इस सोशल एनालिसिस को यूज करना है। बट द आर्ग्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू ओनली राइट द डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट हैज हैपेंड, यू आर नॉट राइटिंग हाउ पार्ट ऑफ द आंसर। हाउ मच का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना
हुआ है। तो कितना सोशल एनालिसिस करने के बाद आप बता सकते हो कि सोसाइटी जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होगा, सोसाइटी इसको जितना ज्यादा अपोज करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा उतना इंप्लीमेंटेशन में टाइम ज्यादा लगेगा या उसका इफेक्टिवनेस कम रहेगा। दिस कुड बी द बेसिक आर्गुमेंट। तो एक क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग इनटू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड the two aspect of it. The first aspect that we understood, yes, very important. If you go back to the syllabus again, you can find out कि देखो जो जो सिलेबस में पॉइंट दिया था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, सीलियन फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, बाकी भी जो जो टॉपिक यहाँ पे दिए हैं रीजनलिज्म जैसे उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो नो क्वेश्चन इज आउटसाइड the syllabus, and that is what first thing we have all have to understand. syllabus अच्छी तरीके से पढ़ो, उसमें से आपको most of the questions you can solve. and ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी के लिए थोड़ी ना लागू होता है, ये तो पूरे जीएस में आपको लागू पड़ता हुआ दिखेगा। एंड दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज टेल यू कि डू फोकस ऑन योर सिलेबस फॉलोड बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी ये तो देख लिया हम लोगों ने कि सिलेबस क्या है, ये भी देख लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेबस को कनेक्ट करके ही आ रहे, बट कितने आ रहे? तो एक तो एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पे दिखा 6 क्वेश्चन आ रहे, बट क्या हमेशा ही 6 क्वेश्चन आते हैं? कितना वेटेज है उसको इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो उसको 2 पॉइंट में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर इज बीइंग सेट फ्रॉम 2013। जो हम लोग आज देखते हैं जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी को एक साथ मिला के 250 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है, जिसमें दे आर गिविंग द 20 क्वेश्चंस, ये पैटर्न 2013 से यूपीएससी ने इंप्लीमेंट किया है और ये अभी तक चालू है 2025 तक, दे आर डूइंग द सेम थिंग। ओके, एमपीएससी ने 2025 से ये इंप्लीमेंट किया है एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट इट। ना इसमें अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट समटाइम्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन 40 मार्क्स, sometimes they have increased it to 100 marks also. So अगर मैं एवरेज लेता हूं, now not a mathematical average, but the years that they are asking the questions, we can say on an average they are asking 80 marks ka questions out of 250 marks. Now this is an important thing to remember. About 80 marks weightage is given to this part of the syllabus, Indian society part of the syllabus. और उसको आप डिवाइड भी अगर करोगे तो जीएस पेपर 1 में 3 पार्ट दिए थे ना उन्होंने, एक था हिस्ट्री, एक था सोसाइटी, एक था ज्योग्राफी। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑलमोस्ट 80 मार्क्स ईच टू द सब्जेक्ट्स विच कंप्राइज ऑफ 240 मार्क्स, लेट्स से 250 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है इंडियन सोसाइटी पार्ट को, लेट्स से अलॉन्ग विथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये अगर मैं मानता हूं तो क्वेश्चन के नंबर भी चेंज होंगे। जैसे कि हम लोग ने जब 2022 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस थोड़ी देर पहले देखा, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखे थे 6 क्वेश्चंस, जिसमें 3 क्वेश्चंस वेर 10 मार्कर्स एंड 3 क्वेश्चंस वेर 15 मार्कर्स। अगर इसको आप लगा दोगे जोड़ के तो ये बन जाएगा 75 मार्क्स। ठीक है, तो बाद में भी वी हैव सम मोर यूपीएससी एंड एमपीएससी का क्वेश्चन पेपर्स टू एनालाइज। उसमें भी आपको ये लॉजिक जो है ये वापस एक बार चेक करने को भी मिलेगा एंड वी विल आल्सो गो थ्रू सर मोर क्वेश्चंस ऑन इंडियन सोसाइटी सो एज टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग। और ये भी एक्टिविटी वापस एक बार करेंगे कि कौन सा टॉपिक है सिलेबस में से, कौन सा क्वेश्चन आया है, कितने मार्क्स का है, कितना वेटेज है। तो ये जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वेटेज इन द एग्जामिनेशन इज 80 मार्क्स, तो ये सच में है कि नहीं, ये हम लोग एक बार वापस चेक करेंगे, राइट। बट ये चेक करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। व्हेन आई वाज मेंशनिंग कि समटाइम्स सम पीपल हैव आल्सो क्लेम्ड दैट कि 100 मार्क्स का इंडियन सोसाइटी आया है, तो ऐसा कितना वेरिएशन, इतना वेरिएशन क्यों लग रहा है? तो इसके रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक है, और ये लॉजिक है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग they could be directly focusing on the syllabus of Indian society part of the
Indian society part in the GS paper 1. But some of the questions are beautifully designed with interdisciplinary nature. अब इसका सिंपल लॉजिक है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मतलब क्या है कि सिलेबस में आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट करके उन्होंने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 बनाए हैं, बट उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट को कनेक्ट करके इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन बना के पेपर में डालते हैं। कैसे? क्योंकि नेचर ऑफ सिलेबस इज सच। देखो ना, आप याद करो, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, वी टॉक्ड अबाउट पॉपुलेशन का टॉपिक, वी टॉक्ड अबाउट अर्बनाइजेशन का टॉपिक। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये तो ज्योग्राफी में भी आएगा। अगर आप देखोगे पॉवर्टी का टॉपिक, आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक, ये तो इकोनॉमिक्स में भी आएगा। नाउ ये सब टॉपिक्स जो है, इसको क्लब करके आपको इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में भी दिया है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। देखो, आई विल रिपीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू स्टडी इंडियन सोसाइटी, हाउ यू नीड टू स्टडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज सी, जीएस पेपर 1 में ही अगर आप देखोगे तो आपको उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पूछा है, दोनों पार्ट भी दिए, राइट? इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट से हम लोग बात करेंगे, and I will quote certain questions also as an example. Okay, so in one of the previous year question paper, they have asked us to answer what are the features of Indian society, वैदिक इंडियन सोसाइटी, पुराना टाइम में जाके वैदिक इंडियन सोसाइटी के ऐसी कौन से फीचर्स है दैट आर स्टिल एग्जिस्ट टुडे। अभी इसमें देखो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ले लिया। अभी ये सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर उनको सिर्फ हिस्ट्री को क्वेश्चन पूछना होता तो व्हाट दे मस्ट हैव आस्क्ड, उन्होंने बोला होता कि वैदिक सोसाइटी के फीचर्स बताओ। यस, देन इट इज डेफिनेटली क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उन्होंने वो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि वैदिक सोसाइटी के टाइम में जो सोसाइटी था और आज का जो सोसाइटी है, कंटेम्पररी सोसाइटी, व्हाट आर द फीचर्स दैट आर कॉमन देयर, दैट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, कौन से ईयर में आया, तो थोड़ा देखेंगे ना। तो आप क्या करोगे, होमवर्क दे देता हूं आपको। होमवर्क में क्या है, यू गो बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था। देखना, 2024 में आया था या 2025 में आया था, 2023 में आया था, आप देखो एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी विल फाइंड आउट कि आपको ये मिला कि नहीं मिला। ओके, चलो, तो हिस्ट्री का मैंने एक क्वेश्चन आपको कॉन्टेक्स्ट करके बताया। और कहाँ पे होता है, तो ज्योग्राफी में। तो थोड़ी देर पहले जब हम लोग सिलेबस का पॉइंट देख रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे देखा कि अरे पॉपुलेशन का टॉपिक है ना, पॉपुलेशन तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में आप इसको डिवाइड करते हो ना, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में डेमोग्राफिक स्टडीज आता है, स्टडी ऑफ डेमोग्राफी, पॉपुलेशन का स्टडी। तो ज्योग्राफी का पार्ट है, डेफिनेटली है, ज्योग्राफी के साथ कनेक्टेड है। बट उन्होंने सिलेबस में सिर्फ पॉपुलेशन नहीं लिखा है। डू यू रिमेंबर, उन्होंने लिखा है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। ओके, तो पॉपुलेशन के साथ कौन कौन से इश्यूज एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट इंडिया, इंडिया का पॉपुलेशन, तो उसके रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉइंट इमीडिएटली बताना शुरू करेंगे कि सर बहुत पॉपुलेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ये कम है, वो ज्यादा है, ये सारे पॉइंट्स बताओगे। लेकिन उसका जो सोशल एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्यों है, इसकी वजह से क्या होगा, why it is there, what is the consequence of it, when it is happening, how it is changing the profile of the society, ये सारी चीजों के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल, why the sex ratio is skewed, तो पॉपुलेशन के रिलेटेड साइज कम ज्यादा होना, ये आप ज्योग्राफी की डेमोग्राफिक स्टडी में पढ़ो, लेकिन उसमें मेल और फीमेल का परसेंटेज का पॉपुलेशन इज डिफरेंट, और इट इज, लेट्स से इन इंडिया वी हैव मोर मेल एंड लेस फीमेल, इसको जो स्क्यूड सेक्स रेशो बोला जाता है, ये थोड़ी ना ज्योग्राफिकल रीजन से बना है, नेचुरल रीजन से नहीं बना है, देयर आर सोशल रीजंस बिहाइंड इट।
वो पढ़ना पड़ेगा। जब आप इंडिया की बात करते हो तो पॉपुलेशन पूरे इंडिया में, बट देन व्हाई देयर इज मोर पॉपुलेशन इन नॉर्थ इंडिया एंड देन लेस पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया? एंड इसीलिए देखो nowadays some in some of the, let's say, South Indian states, some of the political leaders are saying कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो, हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे इफ यू आर गिविंग, लेट्स से यू आर गिविंग बर्थ टू मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा तो पॉपुलेशन कम रह गया भैया, अब हमारा वोट बैंक थोड़ा सा वीक हो गया, तो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में हमारा थोड़ा सा वजन कम पड़ेगा। तो ये जो एंगल डिस्कशन में आता है न्यूज़पेपर में, इधर उधर आप पढ़ते हो, उसका लॉजिक आपको देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन प्रोफाइल चेंज हो रहा है, उससे सोशल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसके आगे भी आप जाके देखो कि देयर विल बी माइग्रेशन पैटर्न इन इंडिया। माइग्रेशन तो सभी जगह पे हो रहा है, बट इंडिया का जो माइग्रेशन पैटर्न है, इज इट सोशली इन्फ्लुएंस्ड? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक में ज्योग्राफिकल एंगल तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट उसमें सोशल एंगल के बिना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गो अहेड। अनदर टॉपिक, लेट्स थिंक अबाउट द अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक, राइट? सिलेबस में ये भी पढ़ा था आप लोगों ने, urbanization. Again, then urbanization is a process where a rural setup is getting converted into urban way of life. तो इसको भी ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके जरूर पढ़ सकते हो आप कि हाउ द टाउन इज डेवलपिंग, क्या होता है, ये सारा पढ़ोगे। बट देखो उसके टॉपिक के आगे उन्होंने बोला है कि अर्बनाइजेशन, इट्स प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है पूछने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरिया विल से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत भीड़ है सब जगह पे। देखो मतलब कॉस्टली लाइफस्टाइल बहुत कॉस्टली है, ये सारे प्रॉब्लम्स है। यस, एक्सेप्टेड। बट ये क्यों है, इसके रीजंस क्या है, इसका सोशल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या सिटी में ट्रैफिक प्रॉब्लम है, is it only because of inadequacy of infrastructure, or also it is because of the behavioral pattern of the people who are living there? ये सोचने वाली बात है। तो बिहेवियरल पैटर्न से भी आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो इशू है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो उस एंगल से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, अलोंग विथ ऑब्वियसली द अदर पॉइंट्स दैट वी हैव मेंशन। तो ये हम लोगों को बता सकते हैं कि देखो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ भी इंडियन सोसाइटी कनेक्ट किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे हम लोगों को उसको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर से ही देखना है और उसको आंसर भी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर से ही करना। लेट्स मूव अहेड विद द जीएस पेपर 2। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 जगह पे कनेक्ट होगा। उसमें फर्स्ट होगा गवर्नेंस वाला टॉपिक, राइट? अगर हम लोग जीएस पेपर 2 को डिवाइड करते हैं तो वी कैन सी दैट पॉलिटी इज देयर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसा उसमें सिलेबस कंप्राइज किया गया है। तो उसमें लार्जली वी विल सी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के, इसमें हम लोगों को इंडियन सोसाइटी का कनेक्शन है। नाउ कैसे, तो देखो ना, गवर्नेंस में क्या है, गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग सर्टन लेट्स से स्कीम्स, पॉलिसीज वगैरह, जिसको क्वालिटेटिवली इंप्लीमेंट अगर करेंगे तो गवर्नेंस आएगा। तो उसमें वापस डिजिटल इनिशिएटिव वाला जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। एजुकेशन वाला थोड़ी देर पहले जो 2022 की यूपीएससी की क्वेश्चन पेपर में देखा था, गवर्नेंस से कनेक्ट होके इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन बनता है। वैसे ही बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखेगा सोशल जस्टिस पार्ट में। बिकॉज इनजस्टिस हैपेंड एट अ सोसाइटल लेवल, तो उसको अगर करेक्ट करना है तो सोसाइटी के लेवल पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखो एक एग्जांपल देते, राइट? नाउ इफ यू लुक एट इंडिया, ट्रेडिशनली it was divided into different stratas, different groups with the caste system, right? So not everybody was given a political right. It was given to only certain sections of the society. So then we started writing our own constitution and we accepted it in 1950, right? And when we accept our constitution, the constitution made every adult Indian citizen equal
विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल राइट्स। तो उनको राइट टू वोट भी दिया गया, दे कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस एंड सम अदर थिंग्स, बट वी विल फोकस ऑन राइट टू वोट एंड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ना आप सोचो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी लाया with a stroke of pen, writing the constitution gives you political equality, but क्या ये really social equality है? A person can vote does not mean person will go and vote. Second thing, person can vote does not mean he understand in a real sense किसको वोट करना है। इसीलिए हम लोग हमेशा देखते हैं with certain tricks like freebies, with certain tricks like caste politics. In many of the elections we have found out certain people are trying to create a vote bank, और वो जब वोट बैंक बनता है वहां पे कास्ट फैक्टर होगा, पैसे का फैक्टर होगा, या देयर कुड बी अदर फैक्टर्स दैट आर ड्राइविंग दैट इंडिविजुअल टू वोट फॉर सर्टेन पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो वहां पे तो उसका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इतना अच्छा नहीं है, he has not reached to constitutional morality, and इसीलिए उसका political right is not a political, उसके साथ जो right दिया है just to remove the political injustice that has happened with certain communities, वो social justice में reflect नहीं हुआ, and that's why social justice is more comprehensive a term than economic justice or a political justice or for that other matter other justice। भाई सोशल जस्टिस चाहिए, किसको चाहिए सोशल जस्टिस? जो जो सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शंस रह चुके हैं या आज भी है। तो थिंक अबाउट इट, वुमन वल्नरेबल सेक्शन है, दलित कम्युनिटीज वल्नरेबल सेक्शन है, माइनॉरिटीज वल्नरेबल सेक्शन है, फिर वो रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकता है, चिल्ड्रंस, यस, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, और जिसको आप थर्ड जेंडर भी बोल सकते हो, दैट कैन बी आल्सो वल्नरेबल सेक्शन। तो इन लोगों को इक्वल टू अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अगर आपको लाना पड़ेगा तो यू नीड टू फोकस ऑन द कंसेप्ट कॉल्ड एज सोशल जस्टिस। तो पहले तो उसमें से आपको सोसाइटी का एंगल पढ़ना पड़ेगा कि सोसाइटी ने कहाँ कहाँ पे इनजस्टिस किया है ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लेट्स से law as a mechanism to bring social justice, is it really sufficient or does it require certain changes at a societal level? And hence, if you remember, or if you let's try to connect it to whatever you are studied in your history, social reforms are very important, not only legal reforms। तो जब भी इंडिया का अगर आप 19th सेंचुरी का 18, 19, 20th सेंचुरी का हिस्ट्री पढ़ते हो तो you'll identify कि सोसाइटी के लेवल पे रिफॉर्म्स के लिए बहुत एफर्ट्स लॉट ऑफ पीपल हैव पुट इनटू। तो यहाँ पे GS2 में आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ना पड़ेगा, GS3 में भी इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कनेक्ट होता है, इकोनॉमी, यस। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे पॉवर्टी वाला पॉइंट ना, ऐसे अगर देखोगे तो पॉवर्टी इज मोर क्लोजली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो आपके पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप पॉवर्टी का कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट आप ये सोचो ना, क्या इज इट द ओनली डायमेंशन व्हेन वी टॉक अबाउट पॉवर्टी? इज इकोनॉमिकल डायमेंशन इज द ओनली डायमेंशन, या उसके आगे भी कुछ हो सकता है? और उसके लिए एक बढ़िया सा मैं आपको काइंड ऑफ होमवर्क दे देता हूँ, आप एक काम करो, आप शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, या नहीं है तो आप इंटरनेट का भी यूज करके इस चीज को पढ़ सकते हो, द टर्म कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आजकल न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा में आता है। तो अगर ये इंडेक्स है जो पॉवर्टी मेजर कर रहा है और वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर कर रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि पॉवर्टी इज नॉट ओनली, it is not only focusing on economic dimension, it is going beyond that। तो ये beyond that वाला कौन सा पार्ट है, ये हम लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे सोसाइटी में, और इसका जो आधा पार्ट बचा है उसको कनेक्ट करेंगे डेवलपमेंटल इश्यूज। इसीलिए देखो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं,
कि इंडिविजुअल के लेवल पे अगर आप उसको पैसे दे देते हो तो क्या उसका डेवलपमेंट हो गया? नहीं हुआ। नहीं तो फिर मल्टीपल स्कीम्स दैट आर ब्रॉट बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देती। पुराने जमाने में तो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट में स्कीम मतलब ये मूवमेंट भी चला था गरीबी हटाओ करके। तो इफ यू आर गिविंग मनी टू सम पीपल तो गरीबी तो हटना चाहिए, तो गरीबी नहीं हटा है। इसका मतलब है सिर्फ पैसे दे के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मीन्स ओनली increasing the capacity to earn income or increasing the income is not going to create a development. Development is also a very multi-dimensional concept. इसीलिए देखो another homework I am trying to give you, read about Human Development Index HDI, बहुत चर्चा में आता है बीच बीच में, तो एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा कि पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इशू का इतना अच्छा संबंध है जो सोसाइटी के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक बढ़िया टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन वाला, ये भी हम लोगों को क्लब करके पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं बोला, वैसे तो ग्लोबलाइजेशन फिर आप इकोनॉमिक्स में उसको अच्छी तरह से पढ़ ही सकते हो ना। जनरली आपने सुना होगा ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, फ्री मूवमेंट ऑफ मेन एंड मशीन कैपिटल, ये सब आप लोगों ने पढ़ा। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी। लेकिन देखो उन्होंने पूछा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन सोसाइटी पे, ग्लोबलाइजेशन चल रही है ना, तो उसको तो मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको सोचने के लिए दे देता हूँ। सी द लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग फॉर दिस लेक्चर टू कंडक्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज। आप सोचो ना, ये थोड़ी ना इंडियन लैंग्वेज है, फिर ये कहाँ से आ गया इंडिया में? आप बोलोगे सर ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने देखे गए, ठीक है, ओके बढ़िया, तो देखे ही गए ना, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप सोचो आप कौन से टाइप के कपड़े पहनते हो, क्या ये ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स है या थोड़े वेस्टर्नाइज टाइप के? आप सोचो ना, आजकल आप एंटरटेनमेंट के लिए जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप थोड़ी ना ओनली रीजनल कंटेंट को ही देख रहे हो, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर कंटेंट्स लाइक हॉलीवुड मूवीज आप देखते हो, आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनते हो। तो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ है। आई एम गिविंग अ वेरी ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। इसमें हम लोग जब लेक्चर्स में जाएंगे तो आर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। बट द पॉइंट इज दैट उन्होंने टॉपिक सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं दिया है, उन्होंने दिया है इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी क्या है। तो देखो इंडियन सोसाइटी की लैंग्वेज में क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडियन सोसाइटी की लेट से फूड हैबिट्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ, अपीयरल स्टाइल पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ये तो छोटा छोटा बात है, मैं बड़ा बड़ा आपको बात बताता हूँ। सोचो इंडियन सोसाइटी की फैमिली सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडियन सोसाइटी की मैरिज सिस्टम में क्या इम्पैक्ट हुआ, ओल्ड एज लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, यंग पीपल के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, लेट से वुमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो आप लोग देखो इकोनॉमी का भी कनेक्शन इंडियन सोसाइटी के साथ है। और आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में भी आपको सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएस के पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में भी आपको यहाँ का पढ़ाई वहां पे यूज होगा। जीएस पेपर 4 को भी कनेक्ट करके जाते जाते और आप लोगों ने इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नाम का सब्जेक्ट है, 250 मार्क्स का सेपरेट सब्जेक्ट है। बट मेरा एक सिंपल आपको सवाल है कि व्हाट डज इथिक्स ट्राइज टू टीच यू इन दिस सब्जेक्ट? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग मान्यता है, किसी चीज को सही माना गया है, किसी चीज को गलत माना गया है। बट मेरा क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल है कि कौन डिसाइड करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? तो माय आंसर इज सोसाइटी डिसाइड्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जो सोसाइटी डिसाइड करती है कि ये सही है तो उसको बोला जाएगा मोरल कंडक्ट, और वो बन जाएगा इथिक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सोचो वुमेन्स एजुकेशन, क्या लड़कियों को पढ़ाना चाहिए? अभी इसका कुछ लोग आंसर करेंगे कि ये सर आप क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली पढ़ाना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। बट आप ये सोचो कि ये आप कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं 21st सेंचुरी के, आज की डेट में, तो आप बोलोगे लड़कियां तो पढ़ती है और पढ़ाना भी चाहिए। लेकिन आप सोचो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जाओ आप,
लेट्स गो बैक टू 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, क्या तब लड़कियों को पढ़ाया जाता था? नो, दे वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम। तो तब अगर था, तो आज के अगर आप मापदंड रखोगे तो उसको आप गलत बोलोगे। सही गलत की बात नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर 18th सेंचुरी में लड़कियों को पढ़ने के लिए अलाउड नहीं था, तो एट दैट टाइम ऑफ सोसाइटी जो बड़ा कलेक्टिव था 15th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में, जो मेजॉरिटी सोसाइटी था वो मान रहा था कि ये सही है और इसीलिए वो सही हो रहा। आज की डेट में आप उसको गलत बोल सकते हो, लेकिन उस टाइम पे लोगों को वो सही लग रहा था, इसीलिए लोग वो चीज कर रहे थे। और इसीलिए उस टाइम पे अगर आप इथिक्स और मोरल्स की बात करते, उस टाइम पे अगर आप इथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते, तो शायद आपका कॉन्टेक्स्ट अलग होता, शायद आपका कंटेंट अलग होता। तो हम लोगों को द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पॉइंट दैट वी हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस इज, सोसाइटी में जो भी मोरल्स इथिक्स बनते हैं वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोसाइटी अपना एक नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है, उसमें सोसाइटी डिसाइड करता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, और जो राइट है उसको हम लोग मोरल बिहेवियर बोलते हैं। और जब इंस्टीट्यूशन की लेवल पे आता है, बड़ी सोसाइटी की लेवल पे आता है, तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है। दैट इज अ वेरी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आई एम ट्राइंग टू गिव यू टू। बट जब आप इथिक्स के लेक्चर्स करोगे, आप उसमें और डिटेल में पढ़ोगे, आपको उसमें और भी डिटेल में सीखने को मिलेगा। बट द पॉइंट इज दैट इथिक्स जब आप करोगे, तो आपको सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग अगर सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तो इथिक्स समझने में आपको बहुत हेल्प होगी और आंसर लिखने में भी आपको उसमें हेल्प होगी। तो ये तो सारा लिखा हम लोगों ने जीएस पेपर 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में। और मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा टू एसे। एसे का सेपरेट पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर है। इसमें अगर आप देखोगे तो दे आर आस्किंग फिलोसॉफिकल एसेज, दे आर आस्किंग यू लेट्स से इश्यूज रिलेटेड, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, some of the other aspect. So yes, for philosophical essays as a part of the essay has been a favorite topic of UPSC. But alongside that, you see social issues are also they are asking almost every year. तो अगर आप देखोगे सोशल इश्यूज के ऊपर अगर आपको ऐसे आता है लिखने के लिए, वन ऐसे वन फॉर 125 मार्क्स आता है, दो ऐसे लिखने होते 125 मार्क्स इस, तो 250 मार्क का पेपर बनता है। तो एक ऐसे अगर आपको सोशल इश्यूज के ऊपर आता है, तो ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इंडियन सोसाइटी, उसका आपको बहुत ही बढ़िया उपयोग होगा। नाउ वी विल कम टू लेट्स से एस्पेक्ट कॉल्ड एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट? Now this will be primarily focusing on UPSC part of the syllabus, क्योंकि MPSC को अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। जीएस में उनको सब जगह पे ये लगेगा, लेकिन हम लोग यूपीएससी को फोकस करके ये डिस्कशन रखते हैं। तो यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको इंडियन सोसाइटी हेल्प करेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में, स्पेशली इफ यू आर चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। तो ये बढ़िया सब्जेक्ट है, ऑप्शनल में 500 मार्क्स के लिए आपको है। तो अगर आप इंडियन सोसाइटी पार्ट अच्छी तरीके से करते हो, तो सोशियोलॉजी का आपका बेस डेवलप हो गया, फाउंडेशन डेवलप हो गया, एंड देन कैन यू कैन बिल्ड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम देयर सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट? नाउ अगर हम लोग देखेंगे तो सिलेबस के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि ये सिलेबस है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 80 मार्क्स का वेटेज है, और जिसमें I cannot only focus on Indian society part. That will be not the right strategy to prepare. क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखता हूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि दिस हैज बीन नाउ द ट्रेंड, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हैज नाउ बीन द ट्रेंड, जिसमें आपको जीएस पेपर 1, 2 और 3 में, यहाँ पे तो मैंने स्पेसिफिकली आपको कनेक्ट ही करके दिखाया है। जीएस 4 का मैंने एक्स्ट्रा बताया है, मैंने ऐसे का भी आपको एक्स्ट्रा बताया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप सोशियोलॉजी चूज कर रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब भी आप रिसेंट क्वेश्चन पेपर देखते हो, स्पेशली 25 का क्वेश्चन पेपर देखो, 4 का देखो, 3 का देखो, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में क्लब करके बनाए हुए दिखेंगे, जिसका आंसर लिखने में आपको एनालिटिकल फ्रेमवर्क भी लगेगा, डायनामिक अप्रोच भी लगेगा,
और मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज भी लगेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा जो भी डिस्कशन हम लोगों ने अभी तक किया है, ये मैंने यहाँ पे स्लाइड में सारा यहाँ पे आपको दिया है। आई विल जस्ट लेट्स स्क्रॉल थ्रू these slides. You can go and read about it. I have tried to, let's say, bring the different themes from Indian society part. और मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके वो सारा दिखाया है कि देखो कैसे वुमन का जो टॉपिक है वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में कैसे कनेक्ट होता है, पॉवर्टी का टॉपिक कैसे कनेक्ट हो रहा है, अर्बनाइजेशन का कैसे हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म, कास्ट का टॉपिक, राइट। उसके साथ साथ ये जो अपना ट्राइबल सोसाइटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारा मैंने यहाँ पे आपको क्लब करके दिखाया है। तो आप ये थोड़ा सा बाद में आराम से पढ़ लेना कि क्या क्या दिखाया है, कैसे कैसे दिखाया है, और इसको पढ़ने के बाद आप ये समझ जाओगे कि इंडियन सोसाइटी का पार्ट जो है इट स्विम्स इजी टू स्टडी। ठीक है, क्योंकि देखो बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, और जब हम लोग पढ़ेंगे भी तो समझने में भी काफी इजी है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे आगे जाएंगे, स्पेशली व्हेन वी विल स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग, और उसका आंसर जो लिखना है उसमें हमेशा आपको डिफिकल्टी लगेगा। और इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं 2024 और 2025 का जो रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसका मैं आपको एनालिसिस देता हूं। अगर आप देखोगे ना तो 2024 में यूपीएससी में जीएस 1 में स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम हो गए थे। ना ये कम हुए क्यों है, जीएस पेपर 1 में मार्क्स क्यों कम हुए हैं, उसका थोड़ा सा अगर एनालिसिस देखेंगे तो द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग दे आर सो डायनामिक इन नेचर। तो उस एग्जाम के 3 घंटे के प्रेशर में उस क्वेश्चन को समझना, उसकी डिमांड एब्सॉर्ब करना, और उसके रिलेटेड फ्रॉम द वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रीडिंग से, प्रैक्टिस से, उसमें से एग्जैक्ट वो पॉइंट्स लेके आना, दोज हु आर गोइंग टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये बहुत चैलेंजिंग स्टूडेंट्स के लिए पार्ट रहा है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स आर राइटिंग द आंसर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पार्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्किप नहीं कर रहे उस क्वेश्चन को, बिकॉज व्हेन दे रीड द क्वेश्चंस दे सी दैट इट्स एन इजी टू आंसर, बट उसकी एग्जैक्ट डिमांड जो है वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक द मार्क्स विल नॉट गो बियॉन्ड एवरेज मार्क्स। और यहाँ पे एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स की वजह से लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स इन जीएस पेपर 1। some of them have scored about 75, 80, 85 marks, which generally people used to cover about used to score about 100 marks in GS paper 1। तो ये जो 15-20 मार्क्स कम हो रहे हैं ना, ये क्यों कम हो रहे हैं, तो इसमें से इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है उसमें भी उनसे कुछ प्रिपरेशन में कमी रह रही है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कमी रह रही है, और जब आंसर लिख रहे हैं तो उसमें सोशल एनालिसिस लिखना स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू इट, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्कोर द मोर मार्क्स। तो ये जो सारी बात की, तो उसको ही हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके देखते। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा है 2025 का, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर रखा है, और उसके बाद में भी हम लोग जाएंगे और एक एमपीएससी का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसको भी लेंगे, और इसको बहुत ही क्विकली एनालाइज करेंगे। तो देखो इसमें भी हम लोग वो 2 एक्टिविटी करेंगे जो थोड़ी देर पहले किया था। फर्स्ट एक्टिविटी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लेट्स से किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है वो आइडेंटिफाई करेंगे। एंड द सेकंड एक्टिविटी विल गो बैक टू आवर सिलेबस का स्लाइड, सोचेंगे दिमाग में थोड़ी देर पहले जो दिखाया था कि ये सिलेबस है, तो क्या सारे क्वेश्चंस मेरे सिलेबस में आ रहे हैं कि नहीं, ये भी चेक करेंगे। और तीसरा देखेंगे कि जो हम लोग वेटेज की बात कर रहे थे कि अबाउट 80 मार्क्स का वेटेज आता है, तो ये भी है कि नहीं सच, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेंगे। तो मैं आपके साथ करूंगा यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। अगेन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आर आस्क ऑन इंडियन सोसाइटी पार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने यूज किया है। तो देखो स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो अरे मेरा क्वेश्चन आया है अर्बनाइजेशन के ऊपर, अरे सही है क्या। और अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम पूछा है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन का अर्बन पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो देखो 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा था थोड़ी देर पहले,
उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा देखो क्वेश्चन का, और इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसका डिफिकल्टी लेवल या क्वेश्चन में अपग्रेड हुआ है, उसमें थोड़ा सा और आगे जाके पूछने की कोशिश कर रहे हैं। बट टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरी टॉपिक और क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, ये आज नहीं डिस्कस करेंगे, वो अगले लेक्चर्स में अगली चीजों में हम लोग बात करेंगे। आज सिर्फ हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सिलेबस में आया कि नहीं आया है। देखो ये क्या पूछा है उन्होंने, देखो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस और एथोस ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में पूछा है। तो अगेन देखो, जब हम लोग सोचेंगे कि नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस बना कैसे, तो देखो इंडिया एज अ नेशन इज एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया एज अ स्टेट लाइक यूनियन ऑफ इंडिया जो हम लोग आज देखते हैं वो बना 1947 के बाद, बट लेकिन इंडियन सोसाइटी तो बहुत पहले से। और जब हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा विच इज अ लॉ ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ इस अदर थिंग्स आर हैपनिंग, उसमें भी तो हमारे इंडियन सोसाइटी का एथोस है ना, इंडियन सोसाइटी का क्रक्स है उसमें, उसी के ऊपर तो ये सारा बना है। तो ये जो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस है, ये एथोस ऑफ सिविल सर्विसेज में कैसे आएगा, प्रोफेशनलिज्म कैसे बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन करके उन्होंने पूछने का यहाँ पे ट्राई किया। थर्ड क्वेश्चन देखो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पूछ रहे हैं, है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वहां पे उन्होंने पूछा है कि हेल्थ कंसर्न्स तो बढ़ रहे हैं बट एट द सेम टाइम फास्ट फूड इंडस्ट्री भी हम लोगों के साथ बढ़ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्यों खा रहे हो बर्गर, क्यों खा रहे हो पिज्जा। अरे तो ये है इफेक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन कैसा है, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में एक टाइप से वो इम्पैक्ट होता है कि इंडिया में वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप अमेरिका, यहां से ज्यादा फ्लो इंडिया में आ रहा है कल्चर का, ट्रेडिशंस का, बिलीफ्स का, प्रैक्टिसेस का। तो ये जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है ये तो वेस्टर्नाइजेशन की ही देन है। तो इसीलिए इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हो रहा है वो हम लोगों को इस चीज में भी दिखता है। तो देखो कैसे कनेक्ट करना है। अब आप बोलोगे ये सर ऐसे क्यों कनेक्ट किया, अगेन द लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर मैं जीएस पेपर 1 में बैठा हूं और ये क्वेश्चन आया है, तो क्या ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं है। क्या ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नहीं है। तो क्या हो गया, ये तो सोसाइटी का क्वेश्चन है ना। तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा सोसाइटी में क्या क्या मेरे सिलेबस में पॉइंट है, उसमें ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट है, तो ग्लोबलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इसके साथ ये कनेक्ट होगा। ये है डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जो इसको समझ पाएगा वही आंसर में उसको कनेक्ट कर पाएगा। इसीलिए देखो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई थी, इसमें मैंने ये भी हेल्थ वाला पॉइंट भी लिखा था। जो 2022 का क्वेश्चन पेपर लिखा दिखाया था डिजिटल इनिशिएटिव्स और एजुकेशन के बारे में, तो ये देखो ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। अरे आप समझ रहे हो, इसलिए बहुत ही बढ़िया डिटेल वाला स्लाइड मैंने बनाया है। तो ये थोड़ा आप बाद में उसको डिटेल में पढ़ लेना, एक बार देख लेना और वापस जाके सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट की जो भी सिलेबस में पॉइंट है क्या यही पूछा है। देखो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछ रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इसको पीपल्स नीड इन द कंट्री, कॉन्फ्लिक्ट विद द पुअर पीपल्स नीड इन द कंट्री के साथ कनेक्ट किया। अभी ये ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा आएगा, लेकिन ज्यादा ये हम लोगों को आएगा इन द डिबेट कॉल्ड एज एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। तो अगर ये आप देखोगे तो इसको मैं अर्बनाइजेशन के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज जो भी चीज इंडिया में हो रही है पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि देखो जब भी आप डेवलपमेंट करने की कोशिश करोगे रिसोर्सेस लगेगी, बट द पॉपुलेशन इज सो ह्यूज दैट रिसोर्सेस आर नॉट सफिशिएंट। और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस का पॉइंट है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि रिसोर्सेस जो भी है इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सोसाइटी ही इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, इजंट इट। सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है, सोसाइटी में अलग अलग चीजों के ऊपर रिसोर्सेस को अलोकेट किया जाता है। कास्ट सिस्टम तो हजारों सालों से यही करती आ रही है। तो ये जो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, इसमें सबसे ज्यादा हैम्पर करेंगे पुअर पीपल। एंड जब भी आप
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करोगे बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो इसीलिए आपको कॉन्फ्लिक्ट विथ पुअर लगेगा। अब भी देखो, मैं ऊपर जाके आपको वापस इसको कनेक्ट करके दिखाता हूं कि कैसे ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे है। यस, देखो, अर्बनाइजेशन में भी इसको कनेक्ट कर सकते, अर्बन गवर्नेंस के साथ, डेवलपमेंट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाउसिंग, देखो पुअर कैसे इंपैक्ट होंगे, हाउसिंग का प्रॉब्लम उनको लगेगा, ये भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी भी जो चीजें हैं इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो आगे जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन तक कनेक्ट किया। सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखो, ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज तो है ना इंडिया का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जैसे इंडिया में अगर आप फीचर्स पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो जैसे आप इंडियन सोसाइटी को कास्ट सोसाइटी भी कहते हो, तो ऐसे इंडियन सोसाइटी में भी ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 8 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ ट्राइबल पॉपुलेशन, विच इज अ ह्यूज साइज। बिकॉज पॉपुलेशन का इतना बड़ा साइज है, उसमें से 8-10% अगर आप निकाल लेते हो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो बहुत बड़ा साइज बन जाता है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा फीचर्स में। और उसमें अगर आप देखते हो तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के बारे में उन्होंने कनेक्ट किया है। तो देखो, इसमें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कनेक्ट कर सकते हैं ना। ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो है, ये डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ भी कनेक्ट होता है। और था क्या सिलेबस में पॉइंट, डेवलपमेंटल इश्यूज, यस, पॉवर्टीज एंड डेवलपमेंटल इशू करके टॉपिक था। क्या फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है? हाँ है। तो अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, इसका और एक मतलब यहाँ पे सामने आ गया। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ये ऑब्वियसली विद द अदर सब्जेक्ट भी कनेक्ट करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में सिलेबस के 2-3 पॉइंट एक साथ क्लब करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नाउ आप देखो, जब मैं 2025 यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकालता हूँ, यू कैन लुक एट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। इंडियन सोसाइटी पार्ट लुक्स इजी टू स्टडी, सिलेबस सिंपल सिंपल दिखता है। व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग, सिंपल सिंपल है, समझने भी बहुत इजी है, लेकिन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग, दे आर वेरी डायनामिक, दे आर वेरी connected to contemporary issues happening around us, and also multidisciplinary है, and they are trying to get the most out of you। तो इसके लिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा। मार्क्स देखते हैं। पहले तो देखा 6 क्वेश्चन है। देखो ये 10 मार्कर है, ये 10 मार्कर है, ये भी 10 मार्कर है, ये ये 10 मार्कर है, ये 15 मार्कर है, ये भी 15 मार्कर है, और ये भी 15 मार्कर है। तो अगेन 3 क्वेश्चन 10 मार्कर है, 3 क्वेश्चन 15 मार्कर, तो हो गया 75 मार्क्स का वेटेज। अंडरस्टूड। नाउ आगे जाते थोड़ा सा एमपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी देख ही लेते हैं। तो महाराष्ट्र पीएससी का जो एग्जाम है, उसमें 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे, वो वही सिलेबस में है कि नहीं, कितने मार्क्स का आता है, और उसका एक्जैक्टली डिमांड क्या है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, वो भी थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले मार्क्स देख लेते। देखो 10 मार्क्स का यहाँ पे पूछा है, 10 मार्क, 15, 15, 15 और 15। तो 4 15 मार्कर है तो 60 मार्क हो गए, और 2 10 मार्कर है तो 20 मार्क्स, तो 80 मार्क्स का वेटेज है। अगेन हम लोगों ने जो बात किया था, लॉजिक इज सेम इन द एमपीएससी आल्सो, बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। देखो क्या पूछा है, रीजनलिज्म और रीजनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। रीजनलिज्म का क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखो अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। हाँ, और इसमें ज्योग्राफी का भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये क्या क्वेश्चन पूछा है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो ये तो फीचर है ही ना इंडियन सोसाइटी का। कनेक्ट करके पूछ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजन है जो इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी के साथ कनेक्ट करके पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन के बारे में पूछते हैं, सिलेबस का पॉइंट है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछते हैं, सिलेबस का पॉइंट है। और कम्युनलिज्म का क्वेश्चन पूछते हैं, सिलेबस का पॉइंट है। उसको भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के लिए बोला है, इसलिए अगेन हिस्ट्री और सोसाइटी का कॉम्बिनेशन है, ज्योग्राफी और सोसाइटी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी देखो आप, पॉलिटी और सोसाइटी का कॉम्बिनेशन है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर उन्होंने कंटिन्यू रखा है।
और आते समय में भी आई थिंक दे आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर, एंड दैट इज हाउ वी शैल बी आल्सो फोकसिंग। तो आप बोल रहे ठीक है सर, चलो पढ़ेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच भी लेंगे, बट क्या पढ़ना है? तो देखो ये पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे तो देखोगे एनसीईआरटी बेस मान के चलेंगे, तो दो एनसीईआरटी है जो बहुत हम लोग बेस मान के चलेंगे। एक 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी, इंडियन सोसाइटी नाम है उसका, और अनदर 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी है, वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इसको थोड़ा सा अच्छा पढ़ेंगे। ये भी एक दो एनसीईआरटीज है, एक 8th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी, उसमें से चैप्टर 4, यूनिट 4 और यूनिट 5 पढ़ेंगे। ये एक एनसीईआरटी है 5th स्टैंडर्ड का, 6th स्टैंडर्ड का, उसमें भी एक चैप्टर डाइवर्सिटी का, यूनिट 1, वो भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे दिया है, ये है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ो, बिकॉज कंटेम्पररी इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, कंटेम्पररी एनालिसिस आंसर में लिखना है, बहुत जगह पे आपको एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। तो इस सब के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बुक आपको दे के रखा है मैंने, ये है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, लिखा है थोड़ा सा, स्पेशली सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बच्चे इसको थोड़ा सा देख के जाते हैं, बट थोड़ा सा इसका जो इशू ये है कि थोड़ा पुराना बुक है, तो उसका जो डेटा है, कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा सा पुराना है, बट यू कैन डेफिनेटली गेट एन आइडिया कि क्या क्या एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट एक्स्ट्रा मैं रखूंगा, मैं प्राइमरली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ यू कैन डू टू थिंग्स हियर, you can stay tuned with Telegram channel. Name of the Telegram channel you can see here. You can let's say scan the QR code also. At the same time, some let's say छोटा सा reels, छोटा सा videos are also uploaded on Instagram channel. इसको भी आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो पढ़ाई के लिए। स्पेशली जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स डाले जो सोसाइटी रिलेटेड है, और वो आप यू कैन गो बैक टू फ्यू ईयर्स आल्सो, पहले से डाले हुए हैं। तो इवन व्हेन यू आर स्टडिंग, यू विल गेट टू स्टडी द अर्लियर हैपन टॉपिक। आप बोलोगे सर करंट अफेयर्स में तो एक साल का पढ़ना होता है ना, तो नहीं, मतलब सोसाइटी का जब आप पढ़ोगे, नॉट नेसेसरली यू शुड ओनली फोकस ऑन वन एरिया। एक जस्ट सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने कोई बढ़िया सा एक आर्टिकल डाला है डोरी इशू के ऊपर, वुमन मैरिज में डोरी देना एक काइंड ऑफ सोशल इविल हम लोग जिसको देखते हैं, या कोई एक बहुत बढ़िया सा आर्टिकल हम लोगों ने डाला है जिसमें पैट्रियार्की के बारे में, न्यूज़पेपर में बहुत किसी ने अच्छा सा आर्टिकल लिखा था। तो ये इश्यूज तो आज भी है, अगर 2 साल के भी, 2 साल पुराना भी अगर आर्टिकल है, तो दीज इश्यूज आर स्टिल रिलेवेंट, एंड दैट्स वाई 2-3 साल के भी पीछे का कोई आर्टिकल है, बिकॉज इट इज गुड आर्टिकल कवरिंग लॉट ऑफ द एस्पेक्ट, तो वो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। लेकिन आप कहाँ जाओगे फिर ये सारा ढूंढने के लिए? तो ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने डाला है, ओपन टू ऑल है, आप देखो, आपको जितना अच्छा लगे उसमें से ले लेना, ठीक है। तो लेट्स सम इट अप विद द लास्ट पार्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने जब तक सब सुना है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? तो टुडे वाज द ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। हम लोगों ने सब्जेक्ट को अभी छुआ भी नहीं है, क्या है सब्जेक्ट ये जाना है, कैसे उसको पढ़ेंगे इसके बारे में बात किया है। तो कैसे पढ़ेंगे? तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर्स। और अभी आपको ये एक्सपेक्ट है, आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि you have to attend all the lectures of Indian Society part. Why? Because as I mentioned, this part looks very easy after reading the syllabus. But when we go to the question paper, look at the 25 ka question paper that they have, the questions are really uh, trying to find out have you really studied this part in a great deal. And that's why lectures are going to help you to make you understand the subject, उसको कैसे कनेक्ट करना है, उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। और लेक्चर के बाद ऑब्वियसली सेकंड थिंग विल बी, विल गो थ्रू द रिसोर्सेस, स्टडी मटेरियल, राइट। तो एनसीईआरटी को बेस मान के चलेंगे, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है वो भी आप पढ़ सकते हो। उसमें अभी जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया था, उस पे वी कीप अपलोडिंग द पीडीएफ ऑफ सोशल इश्यूज, 4-4, 5-5 महीने का क्लब करके सोशल इशू का टॉपिक बनाते, ऑलमोस्ट 100 पेजेस का, समटाइम्स वी ग्रेट, और वो पीडीएफ बनाते,
लेट्स से अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपलोड किया है जो 2026 में लोग मेंस देने जाएंगे यूपीएससी और एमपीएससी का, उनके लिए कौन से सोशल इश्यूज इंपॉर्टेंट है, उसका एक पीडीएफ ही बनाया है। दिस पीडीएफ इज अवेलेबल, डाउनलोड कर सकते हो आप, उसको पढ़ सकते हो। तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल जरूर आप पढ़ना अलॉन्ग विद द बेसिक सोर्सेज दैट वी हैव सजेस्टेड। और ये करने के बाद हम लोग नोट्स पक्का निकालो आप इंडियन सोसाइटी के, बिकॉज देन इट विल बी इजी टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड। बट ये करने के बाद देन यू हैव टू थिंक अबाउट पीवाईक्यूज, राइट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 साल के क्वेश्चन पेपर को क्लब करके दिखाया था, वैसे आप भी कर सकते हो। इंटरनेट का यूज जरूर कर लेना उसमें। और ये पीवाई को थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ाई करते हुए भी देखेंगे और बाद में प्रैक्टिस के लिए उसको लिखेंगे भी। तो आंसर राइटिंग पार्ट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देन लास्ट कम्स अ टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, और जब आप मेंस देने जा रहे हो उसके पहले ही मैं बोलूंगा यू शैल स्टार्ट डूइंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो उसको 2 स्टेज में कर सकते हैं। पहले आप पीवाईक्यूज लिख सकते हो, जिसको आप प्रिपेयर करो, ओपन बुक की तरह लिखो, मॉडल आंसर की तरह खुद का खुद बना लो। बट जब आप एक्चुअल में टेस्ट सीरीज में जाओगे तो टाइम लगा के क्लब करके क्वेश्चन लिखेंगे, तब मन से लिखेंगे और उसको आप जरूर टीचर्स को दिखाओ, उसमें फीडबैक ले लो और उसके ऊपर आप काम करके उसमें डेवलप करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी पार्ट ऑफ द सिलेबस, do drop them into the comment box and we will try to come and try to solve your questions. And thank you for this particular session. Myself Shivaji Kale. Thank you.